Om Jnana-timirandasya Gyananjana-salakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Karamayam Dadati Swaparantikam Vandayaham Shri Guruho Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sahagrijatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurati Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Shatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, welcome everybody. Thank you for joining today. Now, we were, last week, we were on the Bhumika, the introduction, and we were on page XX111. Before we go on to the reading, I'd just like to go back and just summarize a little bit of the beginning of, because we're discussing this verse that defines pure devotional service. तो हमने भूमिका पढ़ी थी पिछली कक्षा में और भूमिका के पृष्ठ नंबर 13 तक हमने करा था और आज हम उसके आगे भूमिका को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो अभी पिछली कक्षा में चर्चा करी थी उसके बारे में हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे. So this verse, those of you who have done the Bhakti Shastri should have learnt this verse, and we're trying to understand it. Anya bilashita shunyam jnana karma dhyanavritam anukulyena krishna anushilanam bhakti uttamam. तो हम में से काफी लोगों ने भक्ति शास्त्री भी करा हुआ है और जिन भक्तों ने भक्ति शास्त्री करा है उन्होंने इस श्लोक को अवश्य याद किया होगा. ये जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है. So, okay, the translation: when first-class devotional service develops, one must be devoid of material desires, knowledge obtained from monistic philosophy, and fruit of action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जब just a second. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है तो उसको सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो उसके अंदर समाप्त हो जाती हैं और जो ज्ञान इधर उधर की लोगों से मिला होता है वो समाप्त हो जाता है और वह भक्त जो है वो कर्म फल जो है उसके वो समाप्त हो जाते हैं. और ऐसी स्थिति में एक भक्त को हमेशा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और कृष्ण की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार से कृष्ण की इच्छा है. Are you getting feedback from my mic as you're speaking? No, Mataji. No, it's okay. I can hear the speaking outside. On the Yes, other. It's because I think my Prabhuji is sitting with me and No. I've got Chandra Purnima out there. Oh, and okay. She's got it on as well. So I can close my door just in case.
Okay, I think that should be fine. Yes, Mataji. Okay, so this verse describes two sets of characteristics. One are the essential characteristics, the Sarup Lakshana, and the other ones are the Tatastha Lakshana, the marginal characteristics. तो इसके अंदर शुद्ध भक्ति की परिभाषा में दो प्रकार के लक्षणों की चर्चा हुई है। पहला है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण वो है जो मतलब सबसे ज्यादा दिखने वाली चीजें होती हैं जो भक्ति में, और दूसरी है जो कम, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो दिखती हैं। So the Sarup Lakshana are actually the second half of the sloka, Anukulyena Krishna Anushilanam. And So- Tatastha Lakshana are the first two lines, Anya Birasta Shanyam Jnana Karma Dhyana-vritam. तो जो हमारा श्लोक है उसकी जो आखिरी की दो पंक्तियां हैं, अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलनम, वो स्वरूप लक्षण को दर्शाती हैं, और जो पहली की दो पंक्तियां हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो तटस्थ लक्षण को दर्शाती है। So in what we've covered already is basically we've covered the Swarup Lakshana. Three basic concepts were discussed. We'll briefly cover those. तो अभी हमने क्या किया है, हमने स्वरूप लक्षण के ऊपर चर्चा कर ली है। So the first one is Krishna, that Krishna is the target of bhakti. तो पहला जो उसका भाग है वो ये है कि कृष्ण, कृष्ण जो है वो भक्ति का निष्कर्ष। Okay, so bhakti is not about anyone else than Krishna. And as we discussed in the beginning yesterday, last week, Krishna in Vrindavan, Bhakti-rasamrta-sindhu Hindi. He is the reservoir of all mallows. So it is only the Vrindavan Krishna that we're the targeting with bhakti. तो जो भक्ति का लक्ष्य है वो सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं है। और हमने जो चर्चा करी थी वो ये चर्चा हुई थी कि जो कृष्ण है वो अखिल रसामृत मूर्ति है, रसराज है, और जो वृंदावन के कृष्ण है वही हमारी भक्ति का लक्ष्य है। We also discussed how Krishna includes his associates as well. How Krishna includes his different incarnations as well as his associates, like the devotees. तो हमने ये समझा था कि किस प्रकार से कृष्ण अपने भक्त और उनके जो विस्तार हैं उन सबको अपने अंदर ही, मतलब उसी कृष्ण के अंदर ही वो सब आते हैं। The second concept is Shilanam, that bhakti is an active principle. We're actually doing something with our body, mind, and words. तो शीलनम का मतलब है कि हम कुछ अपने शरीर, मन तथा वाणी से कर रहे हैं भक्ति के लिए। And then we add anu to it. Anushilanam is the third concept, that it can only happen if we follow the spiritual master. फिर आता है अनुशीलनम, जो इसका तीसरा भाग है, और उसके अंदर ये होता है कि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। So Prabhupada had said that without initiating by a bona fide spiritual master, the actual connection with Krishna consciousness is never performed. तो इसके अंदर बता रहे कि श्रील प्रभुपाद कह रहे कि प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिए बिना जो कृष्ण भावनामृत के कार्य होते हैं वो वास्तव में एक प्रकार से होते ही नहीं हैं। So reasons we're given is two. We have to follow. Anushilana means we follow the succession of spiritual masters. तो अनुशीलनम का मतलब है कि हमें जो गुरु परंपरा चलती आ रही है उसका पालन करना है। And the activities of devotional service are part of the spiritual energy, and therefore, if us being in material life, we have no access unless we go through someone who is connected to the internal energy, the spiritual energy. Can you please repeat? I could not understand. Okay, the activities of devotional service are part of the internal energy. They're spiritual. Therefore, because we're in the material energy, we have no access unless we go through someone who is in the internal energy.
तो जो भक्ति की गतिविधियां हैं वो वास्तव में भगवान की अंतरंग शक्ति है, भगवान की शक्तियों का विस्तार है। और क्योंकि हम लोग भौतिक है तो हम उन शक्तियों में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा ले लें जो ऐसी शक्तियों, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनका सहारा ले लें, तो हम भी उस शक्ति का भाग बन सकते हैं। And the fourth concept we talked about was anukulyena, which is favorable intention. तो उसके बाद फिर चौथा भाग था, वो था अनुकूल लेना, मतलब अच्छी नियत होना, भक्ति के प्रति प्रभावित रहना। And the point is made that therefore if we just do things mechanically, like we just chant our rounds to get our rounds done, that's not anukulyena, because it's not favorable. We're just being mechanical. So we have to be very careful about the quality of our bhakti. तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर हम सिर्फ इसको भक्ति को एक कार्य समझ के और एक ही काम करें कि हमें अपना जप पूरा करना है किसी तरीके से, तो वो अनुकूल नहीं है वो चीज, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी हमें, और कृष्ण को भी प्रसन्नता नहीं देगी। Okay, so now we can carry on with reading. I think we've got the last paragraph on that page XXIII to read, and then coming on to the following paragraph. Is that right? Just a second, I'll check in my book. I think we have to read from here. Kabhi kabhi nirvisheshwadi. Yeah, that's what I think. I don't remember reading that one. Yes. We have to read from here. Okay. तो ये भूमिका का पृष्ठ नंबर 23 है, और 23 का आखिरी जो भाग है, कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से ना समझकर, तो हमें यहाँ से पढ़ना है। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? Vinod has his hand up. Yes. चोपड़ा प्रभु जी, माता जी मैं पढ़ती हूँ। चोपड़ा प्रभु जी पढ़ेंगे माता जी, पहले फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से ना समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था, और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वह ये भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं, वह सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। आगे पढ़ूं माता जी? Just that one next little paragraph, that this is the summary of understanding, just that one, and then we'll discuss it. Should I read? छोटा सा मुझे आगे जो छोटा पैराग्राफ है ना, छोटा सा, थोड़ा सा वो भी पढ़ दो। कृष्ण भावना अमृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य ये समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है, वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। Thank you, Prabhuji. So this is just re-emphasizing the fact that when we talk about Krishna, we're interested in his leela, the places he goes, his paraphernalia, and everything he does in those places. तो इसके अंदर ये बताने कि अगर हमें कृष्ण में रुचि है, तो हमें इस चीज में भी रुचि होगी कि हम उनकी जो जहाँ पे लीला हुई, जो सम्मान था, या जहाँ भी उन्होंने अपनी लीलाएं करी, भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, तो हमें वो स्थान जानने में भी रुचि होगी।
Okay, so now we're going to go on with the Tatastha Lakshanas. No, we're talking about favorable. We haven't done this. This one is talking about Anukulyana, favorable. So somebody would like to read this paragraph. Yeah, one more paragraph on favorable. माता जी आप पढ़ लोगे नेक्स्ट पैराग्राफ? यस माता जी। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की जय। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्त की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उनकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्मों से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्मों का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व है। अतः मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। Thank you. Okay. So we did look at this a slide last week covering this. How sometimes things like Mother Yashoda chastising Krishna doesn't seem to be favorable to Krishna. So how it's favorable, and Kamsa pleased Krishna because he fought with him and Krishna wanted to fight. So we have to understand the motive. तो हमने ये इसके बारे में पिछली कक्षा में भी चर्चा करी थी कि किस प्रकार से यशोदा मैया कुछ ऐसे कार्य करती हैं जो देखने में कृष्ण के मतलब कृष्ण के प्रतिकूल नहीं होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे कृष्ण यशोदा मैया से प्रसन्न रहते हैं, और कैसे कंस ने भी भगवान को प्रसन्न किया था उनसे युद्ध करके, लेकिन फिर भी वो कैसे गलत थी वो चीज। Yeah. Okay. Yeah. So the motive, the favorable intent, and this favorable intention is of prime importance when executing devotional service. तो ये जो भक्ति के अनुकूल हमारी इच्छाएं होती हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं भक्ति में। And this links us to the Tatastha Lakshana, which we also looked at these slides yesterday. तो We ये looked at तो ये चीज हमें तटस्थ लक्षण दिखाती है, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा करी। Anya Bilashita Shunyam. Now we have somewhere. We read this one. The difference between Abhilash and Abhilashita. So devotion, we want to please Krishna, but sometimes we want to please Krishna because that will fulfill our motive. It will make us happy. It will get rid of our problems like that. But pure devotional service means we want to please Krishna, only to please Krishna. तो कभी कभी हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसीलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारी कोई इच्छा होती है और हम उसकी पूर्ति चाहते हैं कृष्ण से, इसलिए हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करी जाती है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए करी जाती है कि कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, और उसके अंदर किसी भी भक्त का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। So therefore,
the desires that we have to be purified. तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं उनका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है. Okay, so we've got this somewhere else. Okay, and later on we come back to Abhilashita and get the explanation of this. But in this next paragraph, we're reading about Jnana Karma Jnanavritam. So shall we read this next paragraph? तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन से भाग पढ़ेंगे? रीना मेहता माता जी. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे श्री कृष्ण. प्रभुपाद की जय. कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है. ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल पड़ते हैं. वास्तव में कृष्ण भावना अमृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है. श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं. इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावना अमृत के प्रतिकूल है. इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए. माता जी आगे पढ़ो. I'm not sure where you are up to. I'm trying to read English and follow you. Yeah, then the next, what have we got? नेक्स्ट पैराग्राफ इज टू बी रेड. Which one have you just read the one? There's one short paragraph next, is that right? तो रीना मेहता माता जी, आपने जो पैराग्राफ अभी पढ़ा था एक बार उसका पहला शब्द बताइए. कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को. So this one was read just now. This one was read. Okay. Next one is to be read. No. Okay. This is because the next one is a different subject. Okay. The next one is the other verse. Yeah, and in my English it looks like the paragraph split somewhere partway through. So Jnana Karma Jnanavritam. Anavritam is an interesting word because sometimes we think that it means we don't want any jnana or karma. But anavritam simply means not covered. Not Covered. Not covered. तो अनावृतम का मतलब कभी कभी कहा जाता है कि हमें ज्ञान और कर्म से मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है अनावृतम का मतलब कुछ भी ढका हुआ नहीं है. So here in the definition, non-devotional activity and knowledge are not completely barred from pure devotional service, but they must not overshadow its importance. तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो भौतिक कार्य हैं या फिर जो ज्ञान है जो कि ये जो है ये शुद्ध भक्ति से बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति को ढकना नहीं चाहिए इन चीजों के द्वारा. So it means not covered by ordinary jnana or spiritual knowledge that is not part of devotional service. Things which are acceptable are knowledge that help us detach from material desires that interfere with bhakti. So it's helpful for us to know things that are tripping us up, that are blocking us from devotional service. तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब यहाँ पे चर्चा हो रही है और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्ति है वो सामान्य ज्ञान के द्वारा ढकी नहीं जानी चाहिए और ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए जो अध्यात्म शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल हो. और इसके अंदर क्या है कि हमें ऐसी इच्छाओं से और ऐसी मतलब तो हमें इतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना हमें हमारी भौतिक आसक्तियों से आसक्ति जो है वो खत्म कर दे. हमें इतना ही ज्ञान होना चाहिए जो हमारी भौतिक आसक्तियों को खत्म कर दे. तो मतलब हमें ज्ञान होना चाहिए लेकिन वैसा ज्ञान जो हमारे भक्ति के अनुकूल हो, और ताकि हमें पता लग पाए कि और हमें ये भी पता लग जो हमारा ज्ञान है वो हमारी भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है.
And karma, an example of karma which is useful is the Navavidhi Bhakti from Srimad Bhagavatam. Karma. Karma. So Because it's karma is jnana and Navavidhi Bhakti from Bhagavatam. that, yeah. So it actually states earlier on, it said that the only karma that was good was the 9 paths of devotional service in Srimad Bhagavatam. Oh, that was in this paragraph. That was a bit in this paragraph that was described. तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हैं, और ऐसे कर्म वो 9 अंग हैं भक्ति के जो श्रीमद् भागवतम में दिए गए. Okay. This is part of a summary. Here's another example. Adi means anything else. So karma, jnana, karma, jnanavritam. So adi is there. It means that jnana, karma, and other things. So other things include Lord Chaitanya. An example of something that is part of a karma that is not unhelpful is when Lord Chaitanya does Pindar at Gaya for his father's funeral. तो इसके अंदर बताया जा रहा है, जैसे श्लोक में आ रहा है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो यहाँ पे आदि का मतलब बताया जा रहा है कोई ऐसी गतिविधियां जो भक्ति का सीधी तरीके से भाग नहीं है, जिस प्रकार से इसके उदाहरण में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से महाप्रभु ने अपने पिता का गया में पिंड दान करा था. Okay. So here's a summary of Swarup Lakshan. Anukul Yena, Krishna should be pleased from it, and the devotee's attitude should be favorable. तो अब हम स्वरूप लक्षण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. तो उसके अंदर पहला शब्द है अनुकूल लेना. तो इसके अंदर है कि ऐसा कार्य जो कृष्ण को प्रसन्नता दे, और ऐसा कि जो भक्त का भाव है वो कृष्ण के प्रति अनुकूल होना चाहिए. And Krishna means Krishna and his expansions, his paraphernalia, his abode, and his pure devotees. और फिर कृष्ण का मतलब यहाँ पे आता है कृष्ण और उनके अलग अलग विस्तार, कृष्ण से जुड़ा सारा सामान और उनका धाम, और कृष्ण के शुद्ध भक्त. And Anushilanam means constant activity following predecessor acharyas. और अनुशीलनम का मतलब है कि गतिविधि करते रहना, जैसे कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना. And a summary of our Tatastha Lakshana is on 2 slides. Anya Abhilashita Shunyam, Anya, other, Abhilash, desires, Ta, motive, and Shunyam, 0. So this is where this phrase includes the motive behind what we do. Anya, Abhilash, Ita, Shunyam. तो यहाँ पे अन्य अभिलाषित शून्यम की बात हो रही है, मतलब कि अन्य का मतलब कोई दूसरी चीज, अभिलाष मतलब इच्छा, ता मतलब उसको करने का जो हमारा लक्ष्य है, और शून्यम का मतलब शून्य. तो इसके अंदर मतलब बता रहे हैं कि सारी भौतिक इच्छाओं से रहित होता है, मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य. And Jnana Karma Janavratam, Jnana impersonal philosophy, karma fruit of activity, adi, etc., which includes artificial detachment, mystic yoga, astrology, etc. And avritam means not covered. तो इसके अंदर फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम आ रहा है. ज्ञान का मतलब ये जो भौतिकतावादी ज्ञान है, निर्विशेषवादी ज्ञान है. कर्म मतलब कर्म फल, आदि मतलब अन्य चीजें जैसे कि झूठा वैराग दिखाना, या फिर अलग अलग प्रकार के योग करना, या फिर किसी भी ज्योतिष विद्या में पढ़ना. और अनावृतम का मतलब नहीं ढका हुआ. Okay, now we can continue reading to the end of that. तो आखिरी पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेंगे? You can continue reading to the end of the Bhumika. पीयूष प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया है. पीयूष प्रभु जी का हाथ. पढ़ू माता जी मैं. लास्ट पैराग्राफ.
Okay. No, it's not the last Shri paragraph. Srimad- It's the last 3 paragraphs. Isn't it 2 or 3? 2, 3. Shri Rup Goswami ne bhakti. हाँ. From here, yeah. Yeah. श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Jai. श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं। तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। श्री रूप गोस्वामी ने नारद पचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा की अद्वित की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपनी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतएव अब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं, तो इससे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं, तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति में संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में ना करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Okay, so this is another verse which Rupa Goswami introduces from the Narad Pancharacha to support his first verse about pure devotional service. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र से श्लोक लिया है अपनी ये जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है उसको सिद्ध करने के लिए। So this is the verse when I did my Bhakti Shastri, I also had to learn this verse. Sarva pari vanir muktam tat paratvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti uchitam. Srila Prabhupada quotes this verse quite a lot. तो ये जो श्लोक है ये नारद पंचरात्र से और ये भक्ति शास्त्री में भी पढ़ाया जाता है और याद भी कराया जाता है और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का बहुत प्रयोग करते हैं जगह। Particularly this sarvopadi, any role that we have in this material world is an upadi, it's a designation. तो सर्वोपाधि है सबसे पहले, मतलब हमारे को कोई भी कार्य दिया जाता है इस भौतिक जगत में या कोई भी पद दिया जाता है तो उसको उपाधि बोला जाता है। So at any one time we have many upadis. We are somebody's daughter or son, we're somebody's friend, we're somebody's brother or sister, we're somebody's worker. We have so many upadis. तो एक ही समय पे हमारे पास कई सारी उपाधि होती हैं, जैसे कि हम किसी के पुत्र या पुत्री हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं या कुछ भी हैं, और भी अलग अलग प्रकार के रिश्ते। So all of these bodies we have to replace with our eternal identity that we are part and parcel of Krishna and we are to serve him. तो ये सारी उपाधियों से हमें बदल के खुद को एक ही चीज समझानी चाहिए कि हमारा जो नित्य रूप है, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बने हैं। Dasu dasanu dasaha, we are Krishna's das. तो हमारा जो नित्य स्वरूप है वो दास दास अनुदास है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। So that is our real identity, and all the other identities are just keeping us going in this material world. तो यही हमारी नित्य पहचान है
और बाकी जितनी भी पहचान है हमारी वो सिर्फ हमें इस भौतिक जगत में बनाए रखने के लिए। So this will has to become purified. We have to get rid of the upadis and we have to purify our material contamination. तो ये हमें शुद्ध करने के लिए है, तो हमें अपनी भौतिक इच्छाओं की शुद्धि करनी चाहिए। And then Rishikena Rishikesha means that our senses are intended to be used to serve Krishna, who is the master of the senses. तो इसके अंदर बताया जा रहा है ऋषिकेश सेवना, मतलब जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने के लिए बनी है। Okay, that's the end of Bhumika. Does anyone have any questions? तो इसी के साथ भूमिका समाप्त होती है। किसी का भूमिका में से कोई प्रश्न है? Soumya Mataji, you're unmuted. You want to ask something? हरे कृष्णा। Oh, Hare Krishna. माता जी, मेरा एक प्रश्न है। So like I have a question. So like I was जब अभी हिंदी में बोल लूं? Yes, आप बता yes. दोगे? हाँ। तो प्रश्न ये था माता जी कि जैसे कि भी आप बता रहे थे ना कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें सिर्फ उसी को ही भक्ति नहीं समझ लेना चाहिए, मतलब भक्ति नहीं समझ लेना चाहिए। जो हम चैंटिंग करते हैं उससे कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो वो एक वर्स आया था अभी बीच में जब आपने बताया था, तो इसी पे एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया जाए कि मतलब, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा यही थॉट्स आते हैं कि सिर्फ चैंटिंग हो जाए तो हो गई, आज का दिन हो गया बस, बट बाकी चीजों पे वो उतना वो कंसंट्रेशन वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ अभी। So Mataji, the question is that we were just discussing that we don't need to just do mechanical devotional service and complete our rounds, and that is devotional service, and that's how Krishna will not be pleased. So the question is that he's saying that I think that only chanting is important, that if I have chanted my rounds today, then my whole day is complete and I'm not attracted to other activities. So can you please elaborate on this? Well, our goal is to be 24 hours engaged. Satatam kirtayantanam. We should be engaged all the time, not just chanting our rounds, also chanting Krishna's glories. But in order to chant, we also have to hear. The Navavidi Bhakti starts with Shravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam. Shravanam is important because unless we use this Shravanam to purify our consciousness and our understanding, we won't be able to chant purely. तो इसके अंदर माता जी बता रही है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमें 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करना है, सततम कीर्तयन्तो माम। और सिर्फ जप करने से कुछ नहीं होगा, अगर हमें जप भी करना है तो उसके लिए हमें श्रवण जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि नवविधि भक्ति का जो पहला अंग है वो श्रवणम है, और जो हमारी भक्ति की शुरुआत होती है वो श्रवण से होती है। और अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम शुद्ध तरीके से हरि नाम भी नहीं ले पाएंगे। Now, ultimately, our spiritual master will give us some other activities to do as well. और फिर उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो हमारे गुरु हैं वो हमें और भी गतिविधियां देंगे करने के लिए। Because when we understand that Krishna came to this material world in order to attract us fallen souls back to him. So if we really want to please him, at some stage we want to in some way help him. तो इसके अंदर ये है कि हमें समझना है कि कृष्ण ने ये सब इसलिए किया कि हम किसी प्रकार से समझ पाए कि हमें उन्हीं के पास वापस जाना है, और इसीलिए हमें कुछ और कार्य भी करने पड़ेंगे इस चीज को समझने के लिए। And so we help. Our Guru Maharaj is serving in Srila Prabhupada's movement, and Srila Prabhupada is serving the predecessor acharyas. So in some way we want to contribute to that movement and not just act individually by ourselves.
तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे गुरु महाराज हैं वो शिला प्रभुपाद के आंदोलन में उनकी सेवा कर रहे हैं, और जो शिला प्रभुपाद है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के आंदोलन में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से लगे रहना है इसके अंदर, और ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेले ही भक्ति कर लूंगा और अकेले सब कर सकता हूँ। But yes, first we have to get attracted and attached to chanting. It's very important. So it's good that you want to chant. तो लेकिन फिर भी सबसे पहले हमें जप से आकर्षित होना चाहिए, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, और अच्छी बात है कि आप जप करना चाहते हैं। There is one Srila Prabhupada Leela story in this connection. तो अभी प्रभुपाद की लीला में से कथा आएगी इस के संबंध में। So the devotees came, Prabhupada visited one temple, I don't know which one, and the devotees came to Srila Prabhupada and they said, Prabhupada, this devotee, he doesn't do anything all day. All he wants to do is sit and chant and read. He doesn't want to do any service at all. तो प्रभुपाद एक मंदिर में गए और वहां पे सारे भक्त श्री प्रभुपाद के पास आए और किसी भक्त के बारे में बोलने लगे कि ये तो सारा दिन माला करता रहता है और ये पुस्तकें पढ़ता रहता है और ये पूरा दिन और कुछ नहीं करना चाहता। And Prabhupada said, so does he attend Mangal Arati? तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या ये मंगल आरती में आता है भक्त? They said, yes, he attends Mangal Arati. तो फिर भक्तों ने बोला कि हाँ वो तो मंगला आरती में आते हैं। Prabhupada said, does he attend the full morning program in the Bhagavatam class? तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या वो पूरा जो सुबह का कार्यक्रम होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, उसको उसमें होते हैं और भागवतम की कक्षा में आते हैं? They said, yes. तो भक्तों ने कहा हाँ। And so Prabhupada said, just let him continue. और फिर प्रभुपाद ने बोला कि उसको इसी प्रकार से चलने दो। And now this devotee is doing much more than that. This was Jayadvaita Swami. और फिर क्या हुआ कि ये भक्त जो है वो आगे जाके बहुत अच्छे से लगे रहे आंदोलन में, और उनका नाम है जय अद्वैत स्वामी। So if we do chant nicely and we do learn the philosophy nicely, we purify our desires and we want to please, then ultimately we want to also do some activities. But you can concentrate first on chanting, that's okay. तो अगर हम अच्छे से जप करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं, जो भी ज्ञान है, फिलॉसफी है, उसको अच्छे से समझते हैं तो ठीक है ऐसे भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जप से आकर्षित हो। तो ठीक है, ये अच्छा है कि आप जप कर रहे हो। But remember that we just learned in this Bhumika how we need to take shelter of a spiritual master. So we shouldn't be trying to do it independently. तो लेकिन एक बात और भी याद रखनी चाहिए, जैसा कि हमने भूमिका में सीखा कि हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपने में ही लगे रहें और अकेले ही स्वतंत्र रूप से भक्ति करें। Now, of course, you have to find the spiritual master that's right for you, and you have to do that by some sincere inquiry, listening to some devotees classes and meeting some devotees. So that also engages some activity. तो उसके अंदर फिर यह है कि लेकिन आपको गुरु धारण करने के लिए सबसे पहले ढूंढना होगा कि आपके लिए सही गुरु कौन है, और वो ढूंढने के लिए आपको अलग अलग भक्तों से श्रवण करना होगा, उनका संग करना होगा, उनसे बातें करनी होगी, मिलना होगा, ताकि वो आपको अन्य गतिविधियों में लगा सकें। And in the beginning, if you're interested in our philosophy, it's advised that you take shelter of Srila Prabhupada and accept him as your Siksha Guru. और अगर आप शुरुआत में हमारी जो भी शिक्षाएं हैं उसमें रुचि रखते हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप श्रीला प्रभुपाद का आश्रय लें अपने शिक्षा गुरु के रूप में। But that alone is not sufficient. Ultimately, you have to take a living guru as well. और लेकिन सिर्फ वो भी मतलब पूर्ण नहीं है, आपको एक जीवित गुरु का आश्रय भी लेना आवश्यक है। Because only by the physical relationship with the guru will you get this connection, and will the guru be able to also correct you. तो क्योंकि गुरु से हमारा शारीरिक रूप से भी मतलब ऐसे मिलना जुलना संभव होना चाहिए, ताकि वो हमसे मिल पाए, हमें पहचान पाए और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसके बारे में हमें बता पाए। Is that sufficient to answer the question?
तो क्या ये मतलब पूर्ण है, मतलब ये उत्तर आपके लिए बहुत है या और कुछ बताया जाए? He is smiling, he's happy. It's sufficient, Mataji. Yes, no, I understood. Thank you, Prabhuji. Thank you, Soumya, Mataji. Thank you, Mataji, thank you, Prabhuji. Soumya, you wanted to say something? धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। थैंक यू माता जी। अभी मेरा भी यही प्रश्न था कि हम लोग भक्ति कर रहे होते हैं बहुत समय से और हमारे को गुरु धारण करने चाहिए कि नहीं, या हमारे को ऐसे चलना चाहिए, तो मेरे को प्रश्न का जवाब मिल गया। So she is saying that I also wanted to ask the same question, that we are doing devotional practices from so long, so should we accept a spiritual master or not? So she said that my question is already answered. Okay, that's good. But of course, there's no time limit for accepting it. You're not forced to do it within a certain amount of time. You do have to. It's your responsibility to make the right choice. So you take what's necessary to make the right choice. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कोई भी निर्धारित समय नहीं है कि इतने समय में आपको गुरु धारण कर ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको समय लेना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सही चुनाव करना चाहिए। Okay. Anything further? There was any other question? Some other question? Yes, माता जी, एक क्वेश्चन और है। जैसे इसमें बताया गया था, स्टार्टिंग में बताया जा रहा था कर्म कांड और सकाम कर्म जो कर्म कांड में परिवर्तित हो जाता है, तो उससे रिलेटेड है। जैसे माता जी, हम लोग चातुर्मास में कुछ नियम पालन करते हैं, जैसे उसके लिए किस लिए होते, एक तपस्या करते हैं हम, मतलब जिससे हम कृष्णा को ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर पाए। तो अगर हम उसमें कृष्णा को स्मरण नहीं करते हैं, जैसे चातुर्मास के बाकी नियमों का पालन करते थे, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम दूध नहीं ले रहे हैं, दही नहीं ले रहे हैं, या जमीन पर सो रहे हैं, या हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमारे को कृष्ण का स्मरण नहीं होता, तो क्या माता जी वो कर्म कांड में परिवर्तित हो जाता है? So Mataji, the question is that it said that we should not do some karma kand or something like that, but if we follow some vows in Chaturmas, like having grains only once a day, or avoiding green leafy vegetables for the whole 4 months, and avoiding milk and curd for the whole 4 months, sleeping on the floor and not sleeping on the mattresses. So we do all this to increase our remembrance of Krishna. But if even by all this our remembrance is not increased, so is it counted in karma kand? Yeah, if it does, like, this is what is meant by anavritam. If it's helpful for you, you can do it. What we must do is what's been given to us by our acharyas, which Srila Prabhupada has given us a very simple guideline for Chaturmasya. And anything above and beyond that, we may do if it's helpful for our devotional service, but if it's not helpful, then we should give it up. तो यही बोला जा रहा है, अनुकूल लेना का भी मतलब यही है कि अगर ये आपके लिए मददगार है तो ही आपको करना चाहिए, वरना ये कर्म कांड ही होता है। हमें सिर्फ उतना ही करना चाहिए जैसे श्रीला प्रभुपाद ने जो सीधा सीधा तरीका बताया है, आचार्यों ने बताया है चतुर्मास पालन करने का सीधा सीधा तरीका, हमें वही करना चाहिए। अगर ये और उसके बाद आप अगर अन्य गतिविधियां कर रहे हैं और वो आपके कृष्ण को स्मरण को नहीं बढ़ा रहा है, तो आपको वो करने का कोई फायदा नहीं। So this is what's meant by jnana karma janavritam. If jnana and karma do not overshadow your bhakti, it's okay. But if they overshadow the bhakti, then it has to go. तो यही बताया कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अगर ज्ञान और कर्म और अन्य चीजें अगर आपकी भक्ति को नहीं ढक रहे हैं तो आप उनका पालन करें, लेकिन अगर आपकी भक्ति को ढक रहे हैं, कृष्ण का स्मरण नहीं करा रहे, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। Thank you, Mata. Yeah, we can do a whole class on Hari Bhakti Vilas and how Hari Bhakti Vilas is not necessarily applicable to us. Was necessary? It's not necessarily you don't have to follow everything in Hari Bhakti Vilas. It's not intended for us entirely. तो हम तो ऐसे तो हरि भक्ति विलास में पूरी कक्षा ले सकते हैं, लेकिन हरि भक्ति विलास में जो भी लिखा है वो सारी की सारी चीजें हमारे करने के लिए नहीं बनी है। So Srila Prabhupada talks about Hari Bhakti Vilas in Chaitanya Charitamrita. He explains one thing. He explains several things. Bhaktivinoda Thakur also explains about it.
तो महाप्रभु ने भी प्रभुपाद ने भी चैतन्य चरितामृत में हरि भक्ति विलास के बारे में चर्चा करी है और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी करी है. So Prabhupada says that it's Hari Bhakti Vilas was created in order to give a Vaishnav Padati, which was partly to show the smarta brahmanas that we had a Padati. तो जो बता रहे कि जो हरि भक्ति विलास है वो इसीलिए बनाई गई थी, लिखी गई थी ताकि हम भी समार्थ ब्राह्मण को दिखा सकें कि हमारे पास भी वैष्णव पद्धति है. And so all these references in Hari Bhakti Vilas are researched from Shastra. तो ये जो हरि भक्ति विलास में जो भी चीजें दी गई हैं शास्त्रों से ही लेके दी गई हैं. So Bhakti Vinod Thakur explains that the Hari Bhakti Vilas is mainly intended for the devotees who are Svanishtita devotees, which means they follow their own path. तो इसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि हरि भक्ति विलास स्वनिष्ठ भक्तों के लिए बनी है, मतलब ऐसे भक्त जो कि अपने हिसाब से चलना चाहते हैं. So once we take shelter of the spiritual master, we become paranishti devotees. और जब हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं तो हम परनिष्ठ भक्त बन जाते हैं. So then our guidance for how to behave comes from Guru. और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो गुरु के द्वारा आया जाता है, गुरु के द्वारा आता है. And Srila Prabhupada has given us so much in his books and his lectures and his letters and conversations to guide us. और श्रील प्रभुपाद ने अपनी कक्षाओं में, पुस्तकों में, पत्रों में, वार्तालाप में, सब में हमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है हर चीज के लिए. Hari Bhakti Vilas itself even says towards the end that it is mainly meant for rich householders. In other words, Svanishta devotees. तो हरि भक्ति विलास में भी लिखा हुआ है आखिरी में कि ये अमीर लोगों के लिए है, जो अमीर गृहस्थ हैं, गृहमेधी लोग हैं, उन लोगों के लिए बनी है, स्वनिष्ठ भक्तों के लिए बनी है. So yeah, if you read the research, I mean I haven't read Hari Bhakti Vilas, but I read this Ram Navami paper from the Shastric Advisory Committee, and they quoted so much from Hari Bhakti Vilas. But then at the end, they concluded by saying, let's follow Srila Prabhupada. तो हमें बहुत मैंने वैसे माता जी कह रही कि मैंने हरि भक्ति विलास तो वैसे नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने रामनवमी के ऊपर एक चीज आई थी तो उसके बारे में पढ़ा था मैंने, और काफी उन्होंने हरि भक्ति विलास और अन्य शास्त्रों से संबंधित चीजें बताई हुई थी, लेकिन उसके अंत में उन्होंने आखिरी में बस यही लिख दिया कि वही करो जो श्रील प्रभुपाद ने बोला. So that should be our guidance. We don't have to get over carried away with austerities. We've got Purushottam Mass coming up, so don't get carried away with that either. इसके अंदर बात ये बता रही कि हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए और बहुत ज्यादा तपस्या में या इधर उधर की चीजों में अपने आप को नहीं लगाना चाहिए. अब जैसे कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो कुछ लोग उसकी तपस्या में लग जाएंगे, तो इसकी जरूरत नहीं. जो श्रील प्रभुपाद ने बोला आपको सिर्फ उतना ही करना है. Now, let's talk about Srila Purushottam Mass, and it's coming up next week. So Bhakti Vinod Thakur also writes about Purushottam Mass. माता जी कह रहे हैं कि चलो बात आई है तो हम पुरुषोत्तम मास के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं जो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, और भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला है वो अभी माता जी हमें बताएंगे. So Bhakti Vinod Thakur says that Purushottam Mass is very much liked by the devotees, by the Vaishnavas. भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम मास है, ये भक्तों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है. And that's because there are no karma kandi activities in Purushottam Mass. और वो इसीलिए क्योंकि किसी भी प्रकार की कर्मकांड गतिविधि नहीं होती है पुरुषोत्तम महीने में. So we can give away all these things. We don't even have to follow Chaturmasya for 1 month. तो माता जी कह रहे हैं कि हम फिर इसलिए ये सारी चीजें उस पुरुषोत्तम महीने में छोड़ सकते हैं. हमें तो चतुर्मास की भी किसी चीज का पालन नहीं करना होता पुरुषोत्तम महीने में.
So again, Bhaktivinoda Thakur is saying that all these rules and regulations you'll find on Google, which is not our guru, are meant for rich householders. They're not meant for us. तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो चीजें आप गूगल पे ढूंढते हो, जो कि हमारा गुरु नहीं है गूगल, ये सारी चीजें जो है ये अमीर गृहस्थों के लिए बनी. So again, what we want to do for Purushottamas is to try and remember Krishna, particularly Govinda, Radha Govinda, more and more. So we try and chant more, we try and a little bit reduce our material necessities, but mainly concentrate on hearing and chanting a little more. Some people say they can offer a lamp every day and various other things. But if you take a personal vrat, know that it's a personal vrat, it's not an ISKCON vrat. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में हमें कृष्ण के प्रति अपना स्मरण बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें जप करना चाहिए, और हम चाहे तो हम प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने कुछ भौतिक सुखों को हल्का सा त्याग सकते हैं. अगर हम चाहे तो कुछ भक्त कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम मास में दिया अर्पण करना चाहिए भगवान को. तो ये सब जो गतिविधियां हैं ये आपका अपना व्रत है, अपनी निश्चय है, लेकिन ये अपना है आपका, ये ISKCON के द्वारा दिया गया नहीं है. So Prabhupada, as far as I can find out, Prabhupada in anything on Veda base never mentions Purushottamas. और माता जी कह रही हैं जितना मैं आज तक समझ पाई, ढूंढ पाई, और वेदा बेस में भी मैंने देखा, तो प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम मास के बारे में कहीं भी कोई वर्णन नहीं करा है. I have heard one Prabhupada disciple saying he mentioned something about it, but it wasn't something he concentrated on. तो माता जी कह रही हैं कि प्रभुपाद के कोई शिष्य तो बोलते हैं कि एक बार कहीं प्रभुपाद ने इसका वर्णन करा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करी हो या कुछ ऐसी बात करी हो. Does anyone have any questions about Purushottamas? तो किसी का पुरुषोत्तम मास के बारे में कोई प्रश्न है? पुरुषोत्तम मास से संबंधित किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है? Mataji, I have this question that if it's not mentioned by Srila Prabhupada and if it was not followed by our previous acharyas, then why it is so popular in ISKCON now? Are we, getting offline from Srila Prabhupada's instructions or what? Well, there's some of these followers, including some senior devotees in Vrindavan, there's an idea going around that Prabhupada was preaching to us lectures and hippies, and therefore he gave us something very simple, but actually real devotees are meant to do more. But I heard a lot of devotees argue against that we, in order to keep our devotional seva as defined here, Anya Bilashita Shunyam Jnana Karma Janavritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. So in order to keep this, we have to keep our focus very simple and not keep adding extra and extra things. But some people like to add extra and extra things, and maybe it's because they don't want to get deep into being simple. Because I don't see Guru Maharaj, focusing on all these things. He never asked us to fast on Bhishma Panchak, or maybe. No, I complained about the devotees here one year, we had devotee here who did Bhishma Panchak the previous year, but then she started preaching to the other devotees about Bhishma Panchak. So they came to me and they told me they were doing Bhishma Panchak. And so I just said, have you asked for your guru's blessing to do Bhishma Panchak? Because I knew if they do Bhishma Panchak, then they've got no energy to do service, then they don't want to do service, right? Yes. So I said, if you're trying to do anything without your guru's blessings, what are you going to gain from it? And so I said, you ask for Guru Maharaj's blessings. And so this second devotee asked for Guru Maharaj's blessings, and he said, no, you cannot do it. Yes, because I remember I also asked one time.
Yeah, no, he's it was yeah. 2-3 years back. I asked him, but he was not saying. Yeah, I mean, if it's going to help you remember Krishna, you may choose to do some things. He doesn't recommend Bhishma Pancha because it's too much austerity for us. It doesn't matter if you were born in India, you've still got a Kali Yuga body. And it's still not intended for so much of austerities. And if we spend all 5 days fasting and all we think about is how hungry we are, is that helping us remember Krishna? No, it's helping us remember delicious prasadam. Yeah. And if we remember it's Krishna's prasadam, it might be helpful. But if we just think it's food, then it's not helpful. So I'm not telling anybody not to do extra austerities, but not overdo it, and not take vrats if you're not sure you can do them. And like some people take vrats, they won't eat sweets for the month, or they won't eat sweets for Chaturmasya. Or the one good one you can try and do is not criticize anybody for the whole month. That's a very good one to try and do. But if you're going to take a vrat, you can't break it. So if you're not sure you can keep the vrat, just say I'm going to try. Don't say it's a vrat, because then you get some negative karma from your karma kandi activities. You'll get some negative karma if you break your vrat, right? Yes, so I'll just translate it in a go. तो प्रश्न यही पूछा था मैंने माता जी से कि जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद कभी भी इस बारे में बात नहीं करते थे, तो ये चीजें कहाँ से आ रही है, क्या हम प्रभुपाद की दी हुई शिक्षाओं से भटक रहे हैं? और फिर प्रश्न ये भी था कि क्योंकि ऐसा होता है तो हमने कभी अपने गुरु महाराज को तो नहीं देखा इन चीजों का पालन करते हुए या किसी से भी करवाते हुए, और वो कभी भी किसी भक्त को अनुमति भी नहीं देते ये चीजें करने की। तो इसको कैसे समझे? तो माता जी कह रही है कि कुछ भक्तों का कहना ये है कि क्योंकि प्रभुपाद हिप्पीज को और बाहर के लोगों को प्रचार कर रहे थे, तो इसलिए प्रभुपाद ने ये सब नहीं बताया, पर ये महत्वपूर्ण है। तो इसी बात पे कुछ भक्त बहस करके ये जवाब देते हैं कि जो चतुर्मास है वो मतलब भक्त को साधारण रहना चाहिए और अन्य मतलब अनेक गतिविधियों में नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ भक्त कहते हैं कि ये लोग जो है भक्त साधारण तरीके से नहीं जीना चाहते, ये लोग कुछ ना कुछ गतिविधियां इस प्रकार की करते रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, हमारा शरीर तो कलयुग का ही है, तो हमें कोई भी ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रकार से मान लीजिए कुछ लोग व्रत रखते हैं कि भीष्म पंचक में हम व्रत रखेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, और अगर वो पूरे 5 दिन यही सोचते रहते हैं अब मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ, अब मेरा व्रत पारण होगा तो मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो वो चीज किसी भी काम की नहीं है। जैसे एक बार एक भक्त ने वृंदावन में बोला, किसी भक्त माता जी ने, उन्होंने भीष्म पंचक का पालन करना शुरू किया, तो आसपास के भक्तों को भी प्रचार करने लगे कि आपको भी भीष्म पंचक करना चाहिए। तो माता जी के पास दूसरी भक्त आई कि माता जी मैंने भी सुना है तो मैं भी भीष्म पंचक करूंगी। तो माता जी ने उन्हें ये उत्तर दिया कि क्या आपने अपने गुरु से आज्ञा ली, उनका आशीर्वाद लिया इस चीज का पालन करने के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, अनुमति लीजिए, फिर इसका पालन आप करेंगे। तो उस समय गुरु महाराज ने उन भक्त को ये पालन करने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन भूखे रह रहे हैं, तो वो कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? और कोई भी ऐसी चीज जो हमें सेवा में बाधा बनती है तो वो तो हमें वैसे ही नहीं करनी चाहिए। तो ये व्रत किस प्रकार से हमें सहायता प्रदान कर सकते हैं? और हमें और माता जी कह रही कि मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर रही, जो कर सकता है उसको करना चाहिए, अगर वो तपस्या कर सकता है करना चाहिए, लेकिन इसका वर्णन कहीं शास्त्र मतलब श्रील प्रभुपाद ने नहीं दिया। गुरु महाराज भी इन चीजों को समर्थन नहीं करते हैं। और जैसे कुछ भक्त कहते हैं कि हम 1 महीना मीठा नहीं खाएंगे या पूरे चतुर्मास हम मीठे का त्याग करेंगे, तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रण लिए बिना भगवान के साथ लोग बोल सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे, ऐसा करने की प्रयास करेंगे, पर प्रण अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो प्रण नहीं लीजिए, सिर्फ प्रयास करने का वचन लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कर्म कांड ही है एक तरीके से, तो आप अगर आप उसको बीच में छोड़ दोगे तो आपका कर्म कांड आपको गलत फल भी दे सकता है, उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। So all this all comes under understanding this term jnana karma anavritam. तो ये सब जो है ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम के अंतर्गत आता है।
तो अभी किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे बोला जाता है कि हमारे को नहीं बताया गया, तो बहुत सीनियर डिवोटीज, जैसे एक थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अंदर प्रभु करते थे चातुर्मास का पालन, जो मूंग दाल और राइस को जमीन पर डालकर उबला हुआ बिना नमक का और हाथ पीछे बांधकर उतना ही पाते थे जितना एक ही बार मुंह में आ जाए। माता जी, वो मतलब वो किस तरह की तपस्या, कुछ उस पर बता सकते हैं? So Mataji, it is said that we are discussing that it's not mentioned anywhere to do extra austerity. So we have heard that Andhra Prabhu also used to fast for Chaturmas. He used to boil moong dal and rice and put it on the floor without salt and eat with his hands behind, just in a go, whatever comes in his mouth. So how do we understand this? Okay, so this is the Chaturmasya Vrata that Bhakti-rasamrta Saraswati did. तो ये वो चतुर्मास का वो व्रत है जो भक्ति सिद्धांत महाराज किया करते थे. And he was quite capable of doing it. So in Prabhupada's time, there was, Prabhupada's time, might have been after Prabhupada's time. In Mayapur, there was one very, very senior devotee who wanted to do this for Chaturmasya. तो कह रहे कि वो जो ये करते थे इसका पालन, वो इसके योग्य थे. और माता जी बता रही कि प्रभुपाद के जाने के बाद एक भक्त थे मायापुर में जो इस प्रकार के ही व्रत का पालन करना चाहते थे चतुर्मास में. Yeah, so he was a Prabhupada disciple. I'm not sure Prabhupada was there or if it was a little bit after Prabhupada left. तो माता जी कह रही कि वो जो भक्त थे वो प्रभुपाद के शिष्य थे और उन्हें ढंग से याद नहीं आ रहा इस समय कि उस समय प्रभुपाद थे इस धरती पर, या फिर ये उसके बाद की बात है जब प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा था. So he followed this Chaturmasya Vrat. तो उन्होंने इस वाले चतुर्मास के व्रत का पालन करा. For the whole of Chaturmasya, he followed this. और पूरे चतुर्मास उन्होंने यही करा. And as soon as Chaturmasya ended, और जैसे ही चतुर्मास खत्म हुआ, he wanted to eat everything and anything. He wanted feast all the time. तो वो जो भक्त थे वो हर समय बस भोग, मतलब कुछ ना कुछ खाने ही चाह रहे थे और सब कुछ वो खाते जा रहे थे. ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, सब कुछ खा लूं. And this devotee is no longer in ISKCON. और फिर क्या हुआ कि ये भक्त है ये अब ISKCON का भाग ही नहीं है. So it might be possible that Indra Prabhu could do this austerity, but if you can't make it, if it doesn't make you think of Krishna more, then you're risking your bhakti. और उसके बाद क्या है कि हम ये समझ सकते हैं कि इंद्र प्रभु ये करने के योग्य थे इसलिए शायद वो कर पाए, लेकिन अगर आप भी कोई व्रत कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको कृष्ण का स्मरण नहीं बढ़ रहा तो आप अपनी भक्ति को जोखिम में डाल रहे हैं. What Prabhupada had given us is he wants us to concentrate on pure devotional service. I'm just listening to, I'll try and share more later, listening to some classes on Madhurya Kanambini, which was written about a pair of verses in Bhakti-rasamrta-sindhu. And we have to be very, very careful of our motives for devotional service. Otherwise we'll get lost and we won't get pure devotional service. तो प्रभुपाद ने बोला है कि हमें अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए ही सारे कार्य करने चाहिए. माता जी कह रही है मैं और भी चर्चा करूंगी इस बारे में, जैसे मैं मधुरे कादम्बिनी की कुछ कक्षाएं सुन रही हूँ और उसके अंदर यही बताया कि हम जो भी कार्य करें उसको सिर्फ भक्ति बढ़ाने के लिए करें और अन्य कोई भी कार्य ना करें. We have to understand that everything can be achieved by devotional service to Krishna. And that we shouldn't have any other motives at all. और उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि सारी चीजों को हमें प्राप्ति हो सकती है सिवाय एक चीज से कि हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति करें. तो इसके अलावा हमें कोई और भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए. And if by fasting like that you can get a big name, or you're such a renounced devotee, and that's not the goal of bhakti. और अगर आप इतना त्याग करने के बाद, इतना सारी तपस्या करने के बाद आपको सिर्फ यही नाम मिलता है कि वाह आप कितने शुद्ध भक्त हो, कितने बड़े भक्त हो, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है.
Any further response? तो अभी कोई और बात किसी को करनी हो या कुछ पूछना? Does not looks like it, Mataji. I think. Okay. All right. Then we can finish for tonight and start chapter 1 next week. Okay, Mataji. तो अभी हम अगले हफ्ते से अपनी कक्षा में अध्याय 1 पे चर्चा करना शुरू करें. Which describes 6 characteristics of devotional service, pure devotional service. जो भक्ति के शुद्ध भक्ति के 6 अंगों के बारे में बताते हैं. Okay. All right. Thank you, everybody. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya vicha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Thank you, namaha. Mataji, for your time. Okay. Thank you. Hare Krishna. Enjoy Hare Purushottam. Mataji, Hare pranam. Krishna. Dhanyavad. Hare Krishna.